topic, which is angiofibroma. Angiofibroma is also known by the name juvenile nasopharyngeal fibroma. ठीक है, and this is a very important topic in ENT, and a lot of MCQs come up. And for you to be able to do all of those MCQs successfully, you just need to know a couple of points, and you'll be good to go. ठीक है. So first of all, angiofibroma is the most common benign tumor of the nasopharynx. The nasopharynx is the part of the pharynx which extends from the base of the skull to the soft palate and opens into the nasal cavity. So if there is an MCQ that asks you for the name of the most common benign tumor of the nasopharynx, you should be able to confidently say angiofibroma. What about the second name of this particular benign neoplasm? Juvenile nasopharyngeal fibroma. And the reason we call it juvenile is because it is almost exclusively seen in young adolescent males near around the time they enter puberty. And this is the reason why it is theorized that this angiofibroma probably has a hormonal etiology, because it is only seen in males and it is mostly seen at the time of puberty. So a couple of important points done with. So you need to understand that this particular benign tumor arises from a structure called the sphenopalatine foramen. The sphenopalatine foramen is a structure which is located in the lateral wall of the nose and the nasopharynx. It's basically an opening. ठीक है ना. जो sphenopalatine foramen है ना, वो nasal cavity को join करता है with something called the sphenopalatine fossa. ठीक है. So ये foramen से ये benign tumor normally arise करता है. This is another high yield point which is often asked in various MCQs. So the second important point is the fact that angiofibroma originates from the sphenopalatine foramen, which connects the nasopharynx with the sphenopalatine fossa. Alright, so we've already talked about the fact that this tumor normally presents in young adolescent males near about the time of puberty. But we haven't talked about the common presenting complaints, ठीक है? So the most common presenting complaint is that of recurrent episodes of profuse epistaxis and unilateral nasal obstruction. Yani most commonly there will be a young boy near about the time of puberty who will present to you with the complaint of recurrent episodes, profuse epistaxis के और साथ में one-sided nasal obstruction की history भी होगी. रिकरेंट का मतलब है जो चीज़ बार बार होती है, मल्टीपल टाइम्स होती है. प्रोफ्यूज़ का मतलब है जो कि ज़्यादा अमाउंट में होती है. ठीक है ना. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और सिनेरियो में भी एंजियोफाइब्रोमा इज़ प्रीटी कॉमन. तो ये बात जहन में रखें कि अगर उन्होंने यंग बॉय को मेंशन किया है एंड अगर उन्होंने साथ में प्रोफ्यूज़ एपिस्टैक्सिस को मेंशन किया है, दिस इज़ मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ एंजियोफाइब्रोमा. ठीक है. अब एक्चुअल पॉइंट ये है ना कि बिकॉज ऑफ द वे and because of the particular anatomy, एक particular distinctive type of spread होता है इस ट्यूमर का. इसको भी जहन में रखना इम्पॉर्टेंट है. एंजियोफाइब्रोमा ऑल्दो एक benign ट्यूमर है बट इट इज़ क्वाइट लोकली इन्वेजिव. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये काफ़ी स्प्रेड कर जाता है. ठीक है ना. लाइक इट कैन इवन प्रेजेंट एज ए स्वेलिंग ऑन द चीक, यानी इतना ज़्यादा उसका स्प्रेड है. ठीक है. सो ये एक बात जहन में रखनी है. एक बज़ वर्ड है जो कि एसोसिएट होगा विद एंजियोफाइब्रोमा, फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी. ये बात मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको. डोंट वरी अबाउट दैट. अच्छा, अगर एक पेशेंट है ना वो प्रेजेंट कर रहा है विद रिकरेंट एपिस्टैक्सिस और साथ में नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री है, तो जब आप उसकी एंटीरियर राइनोस्कोपी करेंगे ना तो आपको नेज़ल कैविटी में एक रेड किस्म का फ्लैशी मास नज़र आएगा. ठीक है ना. सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग. बट बहुत सारी चीज़ों में आपको रेड मैसेस नज़र आते हैं. सो इट्स नॉट क्वाइट डिस्टिंक्टिव. द डिस्टिंक्टिव वे दैट द ट्यूमर नॉर्मली स्प्रेड्स, ठीक है, वो नॉर्मली ग्रो करता है लैटरली स्फीनोपैलेटाइन फोरेमन से, विच इज़ इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन,
and it goes into the sphenopalatine fossa. ठीक है. And sphenopalatine fossa के ऊपर we have a part of the sphenoid bone. सामने जो maxilla है ना उसकी posterior wall होती है और पीछे जो pterygoid plates है ना those form the posterior boundary. तो ये जो angiofibroma है it basically goes into the sphenopalatine fossa, and from the sphenopalatine fossa it enters into the infratemporal fossa, and after entering the infratemporal fossa it can present as a swelling in the cheek. This is also an important buzzword, swelling in the cheek. इसको भी आपने जहन में रखना है. ठीक है. अच्छा, so we've talked about angiofibroma, we've talked about the age group, we've talked about the common presenting complaint, which is profuse epistaxis, which is recurrent, as well as one-sided nasal obstruction, and we've talked about the distinctive growth pattern, the fact that it normally grows into the sphenopalatine fossa. We've talked about the boundaries of the sphenopalatine fossa, and we've said that it can occasionally present as a swelling in the cheek if it grows out of the sphenopalatine fossa and into the infratemporal fossa. Because of the fact that it is basically located in the nasopharynx, angiofibroma can and does cause obstruction of the eustachian tube. ठीक है. And this obstruction of the eustachian tube can present with unilateral serous otitis media. ठीक है. अच्छा, लेकिन ये जो यूनिलैटरल सीरियस ओटाइटिस मीडिया है ना विल बी इन अ यंग बॉय. एक आप केस पढ़ेंगे विच विल बी यूनिलैटरल सीरियस ओटाइटिस मीडिया in an adult, which will be very concerning because it is a potential indicator of nasopharyngeal CA, which is a malignant tumor. तो वो generally adults में होता है. This will be happening in young adolescent males. ठीक है, इस बात को जहन में रखना है. अच्छा, so we've talked about two of the presentations. जाहिर सी बात है जब भी कोई mass होता है या जब भी कोई pathology होती है ना nasopharynx की, so there is always nasal obstruction, and because this is a growing tumor, the nasal obstruction is progressive and it tends to be unilateral, and the serous otitis media and the subsequent conductive hearing loss is similarly unilateral. इसके अलावा because we have a pathology in the nasopharynx, there is also denasal speech. ठीक है. अच्छा, and because there is a mass in the nasopharynx, ठीक है, you can see it when you're performing a posterior rhinoscopy. Acha, what about the other clinical features? Initially we talked about a buzzword which was frog face deformity, which we always associate with angiofibroma, and I also told that because it can grow out of the sphenopalatine fossa and enter the infratemporal fossa, it often presents as a swelling in the cheek. An angiofibroma, although it is a benign entity, it is capable of intracranial extension, and it is also capable of extending into the orbits. This is something you must remember. Even though angiofibroma is a benign entity, it is capable of intracranial and intraorbital extension. ठीक है, इस बात को जहन में रखें. अच्छा, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, क्योंकि ये एक ट्यूमर है जो कि नेज़ोफेरिंक्स में है एंड जो कि नेज़ल कैविटी में स्प्रेड करता है, तो इट बेसिकली स्प्लेज अपार्ट द नेज़ल बोन्स. तो जो नेज़ल बोन्स बिकॉज दे आर स्प्लेड अपार्ट, तो जो नेज़ल ब्रिज है ना वो ब्रॉड हो जाता है. ठीक है. सिमिलरली इट ऑफन टाइम्स एंटर्स द ऑर्बिट एंड कॉजेज प्रोप्टोसिस. तो जब ये तीन चीज़ें एक साथ होती हैं ना, नेज़ल ब्रिज ब्रॉडनिंग, proptosis because of extension into the orbit, and a swelling in the cheek because of extension into the infratemporal fossa, ये जब तीनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, then we call it frog face deformity. Frog face deformity वाला buzzword is most likely to come up in an MCQ. ठीक है, so ये बात आपने जहन में रखनी है. अच्छा, इस केस में I want you to take a look at the CT scan. If they ask you the best way to diagnose, so you have to say that this is mainly a clinical diagnosis. Patient एक particular age group का young adolescent male at the time of puberty or around the time of puberty,
प्रेजेंट कर रहा है विद रिकरेंट एंड प्रोफ्यूज एपिसैक्सिस, साथ में यूनिलैटरल नीजल ऑब्स्ट्रक्शन भी है जो कि प्रोग्रेसिव है, और उसी साइड पर हेयरिंग लॉस भी है जो कि प्रोग्रेसिव है, एंड साथ में प्रोबेबली डीनेजल वॉइस भी होगी। ठीक है, तो ये मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बट हमेशा इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं मोस्ट केसेस में। ठीक है, बिकॉज इट कुड बी समथिंग malignant. The biopsy is contraindicated. Why is it contraindicated? We call it angiofibroma. It is a highly vascular tumor. तो आप इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? This is another important MCQ. The investigation of choice is contrast enhanced CT scan, जिसको हम CECT लिखते हैं, because if this is an angiofibroma तो आपको एक पैथोग्नोमिक फाइंडिंग मिलती है कंट्रास्ट इन्हांस्ड CT स्कैन में, विच इज़ दी हॉलमन मिलर साइन, जो कि इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो सामने है ना, बेसिकली लेट मी जस्ट यूज़ दिस इज़ एक्चुअली द मैक्सिलरी साइनस, एंड ये जो है ना, ये नॉर्मल साइड है। ये वाली जो साइड है ना, इस साइड पर एक एंजियोफाइब्रोमा, यानी ये जो पूरा है ना, ये राइट एंड लेफ्ट साइड की नेजल कैविटी है। इस साइड पर एक एंजियोफाइब्रोमा है जो कि स्फीनोपैलेटाइन फोरेमन के ज़रिए स्फीनोपैलेटाइन फॉसा में एंटर हो गया। ये जो एरिया ना, ये स्फीनोपैलेटाइन फॉसा वाला एरिया है। क्योंकि ये ग्रो कर रहा है स्फीनोपैलेटाइन फॉसा में, तो इट इज़ बेसिकली पुशिंग अगेंस्ट द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द स्फीनोपैलेटाइन फॉसा, एंड द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द स्फीनोपैलेटाइन फॉसा इज़ एक्चुअली द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिला। ठीक है, so whenever you see anterior bowing of the posterior wall of the maxillary antrum on a CT scan, तो इस फाइंडिंग को हम कहते हैं एंट्रल साइन या फिर हॉलमन मिलर साइन. दिस इज़ an extremely important MCQ which often times comes up. This is so important. मैं एक दो बातें फिर से बताऊंगी. ठीक है, ये जो है ना, ये मैक्सिलरी एंट्रम है, ऑल राइट, ग्रीन में. ये एंटीरियर वॉल है मैक्सिला की. ये जो है ना, ये पोस्टीरियर वॉल है. ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये हमारा इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन दिस इज़ बेसिकली द स्फीनोपैलेटाइन फॉसा. तो जब स्प्रेड हुआ है स्फीनोपैलेटाइन फॉसा में और ट्यूमर का साइज़ बढ़ रहा है, तो इट विल पुश अगेंस्ट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिलरी एंट्रम. मैक्सिलरी एंट्रम इज द मैक्सिलरी साइनस, और इस पुशिंग की वजह से एंटीरियर बोइंग होती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिलरी एंट्रम की, विच वी कॉल द एंट्रल साइन. ठीक है, द एंट्रल साइन इज़ देयरफॉर पॉजिटिव. इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो टेरिगॉइड प्लेट्स हैं, दे आर पुश्ड पोस्टीरियरली. अच्छा, so if they were to ask you the best possible investigation for the diagnosis of angiofibroma / nasopharyngeal angiofibroma, the answer will be contrast enhanced CT scan, जिसकी इमेज मैंने आपको दिखाई है. और contrast enhanced CT scan में आपको हॉलमन मिलर साइन मिलता है. इस टॉपिक से अगर कोई ऑस्पी का क्वेश्चन आया ना, तो हॉलमन मिलर साइन आएगा. वो कहेंगे ये कौन सा साइन पॉजिटिव है और किस कंडीशन में ये पॉजिटिव होता है. और ये साइन पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज स्फीनोपैलेटाइन फॉसा में एक ट्यूमर है विच इज़ पुशिंग अगेंस्ट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिलरी एंट्रम, जिसकी वजह से उसकी एंटीरियर गोइंग हुई है. MRI की भी ज़रूरत पड़ सकती है टू चेक फॉर सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन, बिकॉज वी सेड कि ऑल्दो ये एक बिनाइन ट्यूमर है, इन फैक्ट द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द नेजोफेरिंग्स, इट इज़ लोकली इन्वेसिव. तो अगर ये हमने देखना है कि कहीं ऑर्बिट में एक्सटेंड तो नहीं कर रहा या क्रेनियम एक्सटेंड तो नहीं कर रहा, उस केस में यू गो फॉर MRI. और आपकी जो जनरल बुक है ना, उसमें भी सेकंड पॉइंट में मैंने MRI लिखा हुआ है टू चेक फॉर सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन. और सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन किधर होती है? जाहिर सी बात है, या तो ऑर्बिट में होती है या फिर क्रेनियम में होती है. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जनरली आप डायग्नोसिस क्लिनिकल पिक्चर पे करते हैं, बिकॉज एक बहुत ही ऑब्वियस किस्म का सिनारियो होता है. पेशेंट आपके पास आता है प्यूबर्टी के राउंड अबाउट, यंग एडोलेसेंट मेल होता है, हिस्ट्री होती है एपिस्टैक्सिस की, वन साइडेड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की जो कि प्रोग्रेसिव है, एंड साथ में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की भी. लेकिन आप फिर भी कंट्रास्ट इन्हांस्ड CT स्कैन करते हैं और MRI करते हैं इंट्राक्रेनियल और इंट्राऑर्बिटल एक्सटेंशन को देखने के लिए. फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी वाला बज़वर्ड भी आपने नहीं भूलना, बिकॉज ऑफ स्वेलिंग इन द चीक, प्रोप्टोसिस. ठीक है, स्वेलिंग होती है इन द चीक, साथ में प्रोप्टोसिस होता है. ठीक है, इसके अलावा वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर द ट्रीटमेंट. कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं. एक दो और बातें भी है कि कैरोटिड एंजियोग्राफी भी की जाती है, ताकि ये पता चले कि कौन सी फीडिंग वेसल्स हैं एंजियोफाइब्रोमा की,
बिकॉज बेहतर ये होता है कि आप प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले एम्बोलाइजेशन कर लें ताकि साइज़ बेसिकली छोटा हो जाए। इसका मतलब ये है कि एंजियोफाइब्रोमा में एक और जो इम्पोर्टेंट बात आपने लिखनी होगी ना इन्वेस्टिगेशंस में, इस कैरोटिड एंजियोग्राफी, ताकि आपको पता चले कि एक्सटेंट के ट्यूमर का, उसकी फीडिंग वेसल्स कौन सी हैं, ताकि आप ऑपरेशन से पहले एम्बोलाइजेशन कर सकें, ताकि एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ब्लीडिंग कम हो। ठीक है, दिस इज़ अ हाईली वैस्कुलर ट्यूमर। अगर पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज हो तो दैट कैन बी अ कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, ठीक है। और एम्बोलाइजेशन के 24 से लेकर 48 आवर्स बाद आपको रिजेक्शन कर लेनी चाहिए, बिकॉज अगर आप इससे लंबा वेट करेंगे तो रीवैस्कुलराइजेशन भी हो सकती है ट्यूमर की। एंड रिजेक्शन करने से पहले अरेंजमेंट होनी चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इन केस समथिंग बैड हैपन्स।